Hello, I'm your friend Shweta. Welcome back to my YouTube channel. Today's video is specially for people who are looking to arrive at Canada or are already in Canada and are just trying to figure out how the Canadian style cover letter and resumes are. So here I am to help you out a bit and make you understand about the Canadian culture, resume styles, and I hope this would help you to achieve your dream job upon landing in Canada, or if you are in Canada, I hope you all find your jobs by incorporating the Canadian style resume so that the employer understands better and you can present yourself in a Canadian style so that the alignment is together. Okay. And how about the background? I thought of changing it a bit today because it's so beautiful, isn't it? Like the Christmas and the snow. I just love it. I just sit here for a long time with my hot cup of coffee, and I'm not a coffee person, but looking at this I just want to drink a lot of coffee because it's a bit cold and those Christmas vibes, you know. So there are various types of resumes, but when you come to Canada, like a typical Canadian resumes are 6 styles. The cover letter is also one style. So the first type of style of resume is the chronological, which is just 1 page. I'll link down all these templates in my description box for your help so that you understand what I'm really talking about. और आपको आपका जो resume style है एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट आपको कौन सी रेज्यूम स्टाइल यूज़ करनी चाहिए वो भी आपको टेम्पलेट देख के समझ जाएगा. सो द फर्स्ट मैंने जो बताया वो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम होता है जो एक ही पेज का होता है. जो सेकंड स्टाइल होता है दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम विच इज़ ऑफ 2 पेजेस. वो सिर्फ 2 पेजेस इंक्लूड करता है एंड आई हैव लिंक डाउन द लिंक्स टू चेक द रेज्यूम स्टाइल एंड द टेम्पलेट और उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होनी चाहिए. The second style is, the third style is skill based. जो resume आपके skill जैसे कोई job skill based job होती है तो आपको resume उसी तरीके से आगे करना होता है. तो ये skill based 2 टाइप के होते हैं. जो first type है 1 page that includes only 1 page of resume and the second skill based resume is of 2 pages. तो आपके अगर skills ज़्यादा है या experience आपकी ज़्यादा है आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो यू कैन गो विथ स्टाइल 2 बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर स्पेस एंड द लिंक इज डाउन बिलो. यू कैन गो एंड हैव अ लुक. एंड द 5th स्टाइल इज कंबाइंड रेज्यूम. तो ये भी इसमें भी कंबाइंड रेज्यूम में वर्जन 1 एंड वर्जन 2 होता है. सिमिलरली आई हैव लिंक डाउन द लिंक्स फॉर दीज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एंड मैच इट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है लाइक उनके जॉब प्रेफरेंस में स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है तो यूज़ द स्किल बेस्ड. अगर कंबाइंड यानी मिक्स है तो यूज़ द कंबाइंड रेज्यूम. अगर क्रोनोलॉजिकल आपको डेट वाइज सब दिखाना है तो यूज़ यू नो इफ़ यू वांट टू गो क्रोनोलॉजिकली देन यूज़ द क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम. तो उसमें वर्जन जो कंबाइंड रेज्यूम है उसमें वर्जन A है एंड वर्जन B है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंबाइंड रेज्यूम. So this is what the Canadian style resume templates are, and they really helped to figure out page. If you go and see, click the link below and see the template style. It's so plain, simple and to the point. I'm not saying कि अगर कोई और country कुछ और है नहीं, but इनको जो चाहिए रहता है just straight away आप put on कर दो. उनका और आपका मैच हो गया क्योंकि basically resumes होते हैं वो it goes through some system. आप लोगों को भी अभी पता है. तो This resumes in Canada are based on are designed as per those system जिसके थ्रू वो जाता है. तो आपका चांसेस सिलेक्शन का ज़्यादा हो जाता है और एम्प्लॉयर को जो चाहिए होता है मेजरली इट इज़ अ लाइक यूनानिमस प्लेटफॉर्म. हर एम्प्लॉयर यूज़ करता है ये रेज्यूम स्टाइल और उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि ओके ये स्किल्स है, ओके ये एक्स्ट्रा स्किल है, ये एक्स्ट्रा स्किल है, दिस कैन बी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर माई जॉब और फॉर आई कैन हायर हिम और हर एज पर लाइक आपने सब क्लियरली मेंशन किया है. द कवर लेटर इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 2 वेबसाइट्स. अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो
इसके पहले वाली वीडियो जाके देखें, वहाँ पे मैंने 2 प्लेसमेंट्स के नाम बताए सर्विसेज के, जो आपको हेल्प करता है आपके करियर जॉब ढूंढने में, आपके रेज्यूम बिल्डिंग में, ओवरऑल आपको बिल्ड हेल्प करता है। और सेकंड है जो CCIS है, ये भी आपको ओवरऑल ही हेल्प करते हैं। आपको आपको स्किल डेवलप करनी है या एनीथिंग, दे विल हेल्प यू, यू जस्ट गो टू देम, दे विल हेल्प यू। और बाकी तो सब इट समटाइम्स डिपेंड ऑन द लक। व्हेन मैं जब कनाडा आई थी, मेरा रेज्यूम तो इंडियन ही था, आई गॉट सिलेक्टेड क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था टीचिंग में, तो मुझे टाइम नहीं लगा अपना इंडियन, बिकॉज कभी कभी एम्प्लॉयर अपना काम देखता है, तो उसने मेरा रेज्यूम गो थ्रू किया एंड शी रियली लाइक्ड मी एंड माई रेज्यूम एज वेल, तो मैं हायर क्विकली हो गई थी। बट अगर मुझे अभी करियर स्विच करना है तो आई जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द कनेडियन कल्चर रेज्यूम स्टाइल लुक्स लाइक। सेकेंडली, आपके पास, आप जब कनाडा आते हो, आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार्ट डूइंग वॉलंटरी जॉब्स, क्योंकि वो भी आपके रेज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। तो आपने अगर जॉब नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहे हैं, तो ट्राई यूजिंग द कनेडियन स्टाइल टेम्पलेट्स रेज्यूम के, जो मैंने लिंक डाउन किए बिलो, और स्टार्ट डूइंग वॉलंटरी जॉब। वॉलंटरी जॉब उसको बोलते हैं जो फ्री जॉब्स होते हैं, जहाँ पे आपको पे नहीं होगा, और ये मैक्सिमम 1 और 2 डेज के लिए होता है। और कुछ गवर्नमेंट बेस्ड जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, बट इट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप कि आपने कनाडा में काम किया है एंड यू हैव अ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए आपके जॉब ढूंढने के जर्नी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।